قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت والا شخص کون ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا؟ کس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے؟ 10۔ قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ اقرا یعنی پڑھو۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ کس نبی کو صابرین کا سردار کہا گیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کروائی؟ مسجد قباء۔ وہ پہلا غلام کون تھا جو ایمان لایا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار آئی ہے؟ 114 مرتبہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس شکل میں زیادہ آتے تھے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معجزہ کیا تھا؟ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ کیا کہلاتا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ سب سے پہلے دنیا میں وفات پانے والے انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن پانی میں رہی؟ 40 دن۔ جنت میں سب سے اعلیٰ اور عظیم نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جنت میں سب سے اونچا مقام کون سا ہے؟ جنت الفردوس۔ قیامت کے دن سب سے بھاری عمل کون سا ہوگا؟ اچھے اخلاق۔ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ سورۃ الفاتحہ۔ یہ قول بعض اقوال پر مبنی ہے۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں؟ بیت المعمور۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا عذاب کس قوم پر نازل ہوا تھا؟ قوم نوح علیہ السلام پر۔ وہ کون سے نبی تھے جن کی دعا سے دریا اور نہروں کا پانی خون بن گیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دنیا میں شرک سب سے پہلے کس قوم نے کیا؟ قوم نوح علیہ السلام نے۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے کبھی کوئی پیشہ نہیں اپنایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتے اٹھا رہے ہوں گے؟ 8 فرشتے۔ ربی زدنی علما یہ آیت قرآن پاک کی کس سورہ میں آتی ہے؟ سورہ طٰہٰ۔ سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورۃ العلق۔ وہ کون سا عمل ہے جو رزق کو کھینچ کر لاتا ہے؟ کثرت سے استغفار پڑھنا۔ سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ وہ کون سا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں؟
तहज्जुद का वक्त। वो कौन से नबी हैं जिनका तज़किरा हर मज़हब में मिलता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो कौन सी सूरत है जो मौत की याद दिलाती है? सूरतुल वाक़िया। वो कौन सा लफ्ज़ है जो ज़ुबान पर हो तो फरिश्ते दुआ करते हैं? सुबहान अल्लाह। वो कौन सा दिन है जो ईद से भी अफजल है? यौम अरफा। औरत की ठोड़ी पर बाल आना किस चीज की अलामत है? औरत की ठोड़ी पर बाल आना बाज़ औक़ात खतरे की अलामत हो सकता है, खास तौर पर जब ये अचानक और ज्यादा मिकदार में जाहिर हों। ये आम तौर पर हार्मोनी अदम तवाज़ुन या किसी तिब्बी मसले की निशानदही कर सकता है। वो कौन सा फल है जिससे पेट की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं? बेर। वो कौन सा अमल है जिससे दिल का गरूर खत्म होता है? सजदा। वो कौन से नबी हैं जिन्हें बचपन में ही नबूवत मिली थी? हजरत याहया अलैहिस्सलाम। वो कौन सा वक्त है जब दुआ रद्द नहीं होती? इफ्तारी का वक्त। वो कौन से नबी हैं जो 40 दिन तक अल्लाह से हम कलाम रहे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वो कौन सी चीज है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है? आजिज़ी। वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें जंग में कभी शिकस्त नहीं हुई? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। सबसे पहले अल्लाह ताला के किस नबी ने खाना काबा पर गलाब चढ़ाया था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। काबिल और हाबिल का वाक़या कुरान पाक की किस सूरा में मज़कूर है? सूरतुल माइदा में। सबसे पहले जमीन पर पैदा होने वाला जानवर कौन सा था? मछली। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के गार में कितने दिन रखा गया? 60 दिन रवायात की बुनियाद पर। बागे इरम के नाम से किस बादशाह ने जन्नत बनाई थी? शद्दाद काफिर बादशाह ने। हदीस मुबारका में जन्नत के फूल किसे कहा गया है? बच्चों को। दिल का जंग किस अमल से साफ होता है? कुरान पाक की तिलावत करने से। किस सहाबी ने हिजरत के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में पनाह ली? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। वो कौन सी कौम थी जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तबाह कर दिया? कौम आद। बाज हवालों में हजरत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा ज्यादा है। कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं? 14। रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक कैसी है? मुश्क की बू से बेहतर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा मोजिज़ा है जो हमेशा जिंदा रहेगा? कुरान पाक। वो कौन सा जानवर है जिसे जिन्नात नजर आते हैं? गधा। अल्लाह ताला किस गुनाहगार इंसान को पसंद करता है? तौबा करने वाला। मुजरिम को फांसी देने से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है? नफल नमाज। कुरान मजीद का पहला सजदा किस सूरा में है? सूरतुल आराफ में। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने अरसे तक शरीके हयात रहीं?
24 या 25 साल। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा किस चीज का हुक्म दिया है? नमाज का। इस्लाम में सबसे पहले शायर कौन थे? हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। सबसे पहले जुमा किसने कायम किया? हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना मुनव्वरा में कायम किया। बैतुल मक़दस खाना काबा के कितने साल बाद तामीर हुआ? 40 साल बाद। किस शख्स को सदका देने से सवाब दुगना मिलता है? रिश्तेदार को। क्या जुमेरात को मुर्दों की रूहें घरों में आती हैं? ऐसी कोई सही हदीस मौजूद नहीं, ये बात अवामी रवायत पर मबनी है। इस्लाम के बुनियादी अकायद कितने हैं? 5। तौहीद, रिसालत, नमाज, रोजा, ज़कात और हज को इरकान इस्लाम कहा जाता है। कौन सा गुनाह करना अपनी माँ से निकाह करने के बराबर है? सूद खाना। हदीस के मुताबिक सूद की गुनाह की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि उसे माँ से जिना के बराबर कहा गया है। सूरतुर रहमान कुरान मजीद के किस पारे में है? 27वें पारे में, पारा नंबर 27। कुरान पाक में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कितनी बार आया है? 4 मर्तबा। नमाज तरावी जमात से पढ़ने का आगाज किसने किया? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितने साल हुकूमत की? 10 साल 6 महीने। किस वक्त झूठ बोलना जायज है? बीवी को खुश करने, जंग के मौका पर और 2 मुसलमानों में सुलह कराने के लिए। अल्लाह ताला जन्नत में कौन सी सूरा खुद सुनाएंगे? सूरतुर रहमान। औरत अगर अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ ले तो क्या होता है? औरत घर में अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ सकती है, जमात का इंतजार जरूरी नहीं। वो कौन सा सजदा है जो अल्लाह ताला की रजामंदी की निशानी है? जब अल्लाह ताला किसी से राजी होता है तो उसे सजदे की तौफीक देता है, जैसे शुक्र का सजदा। वुजू का तरीका कुरान मजीद की किस सूरा में आया है? सूरतुल माइदा में। क्या हाथ पर खारिश हो तो पैसे मिलते हैं? नहीं, ये महज वहम और गलत अकीदा है। अल्लाह ताला जहन्नुम पर कितने पुल बिछाएंगे? अल्लाह ताला जहन्नुम पर एक ही पुल बिछाएंगे, जिसे पुल सिरात कहा जाता है। आंखों की बीनाई कम होना किस चीज की अलामत है? ये जिस्मानी या तिबी मसला है, नेकियों या गुनाहों से इसका ताल्लुक नहीं। बिस्तर पर खाना खाने से क्या नुकसान होता है? सफाई मुतासिर होती है, बीमारी का खदशा होता है और बेबरकती का सबब बन सकता है। क्या जुमा के दिन नहाना जरूरी है? सुन्नत मुअक्कदा है और बहुत फजीलत है। क्या कुरान पाक मस्जिद की कालीन पर रखना जायज है? जी नहीं, बेहतर है कुरान मजीद बुलंद मुकाम पर रखा जाए। किस दिन कपड़े धोने से रिज्क की तंगी दूर होती है? ऐसा कोई दिन मखसूस नहीं, रिज्क के लिए इस्तगफार, दुआ और मेहनत का हुक्म है। सर्दियों में कौन सी गलती हार्ट अटैक का सबब बन सकती है? कम पानी पीना, खून गाढ़ा हो जाना। क्या रात को झाड़ू देने से गुनाह होता है? नहीं, शरई तौर पर इसकी ममानियत नहीं। क्या वुजू की हालत में फौत होने वाले को शहीद कहा जाता है? बाज रवायात में है कि उसकी शहादत जैसी फजीलत होगी।
सर्दियों में मुसलसल हाथ पांव ठंडे रहना किस बात की अलामत हो सकती है? खून की कमी या गर्दिश की खराबी? क्या बगैर वुजू कुरान मोबाइल से पढ़ा जा सकता है? जी हाँ, मोबाइल पर कुरान पढ़ने के लिए वुजू शर्त नहीं। वो कौन सा परिंदा है जो रात को देख सकता है? उल्लू। वो कौन सा गुनाह है जो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करता? शिर्क। वो कौन सी चीज है जिसके पास जाकर इंसान को सुकून मिलता है? नमाज। वो कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? मोहब्बत। खड़े होकर बेसन पर वुजू करना कैसा है? जायज है, नियत और तरतीब सही हो तो। कौन सी तीन चीजें दिल की आंख को अंधा कर देती हैं? गुनाहों में मशगूल रहना, रियाकारी से इबादत करना और खालिक को छोड़कर मखलूक से उम्मीद रखना। बेहतरीन शिफा का जरिया क्या है? कुरान पाक। जिस्म से ज्यादा बदबू आना किस चीज की अलामत हो सकती है? जिस्मानी सफाई की कमी या बीमारी? क्या ज्यादा वज़ाइफ पढ़ने से नुकसान होता है? नहीं, जिक्र इलाही के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रिज्क का जिक्र कितनी बार किया? तकरीबन 123 मरतबा। इसका अदद मुख्तलिफ गिना जाता है। 119 का जिक्र भी आता है। कुरान पाक की किस सूरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब अल्लाह के मोहताज हो? सूरा फातिर आयत नंबर 15। अल्लाह ताला का पहला अजाब किस कौम पर आया था? कौम नूह अलैहिस्सलाम पर। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत किस उम्र में हुई? तकरीबन 63 साल की उम्र में। कर्ज अदा ना करने वाले के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो शख्स मालदार होकर भी कर्ज अदा ना करे तो वो जालिम है। वो कौन सा वक्त है जब दुआ कबूल नहीं होती? मौत के वक्त। कौन सी नमाज में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी जाती? नमाज जनाजा। क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? नमाज का। कौन सी सूरत शैतान के हमलों से बचाती है? सूरतुल फलक। यौम अरफा के दिन रोजा रखने का क्या सवाब है? गुज़िश्ता और आइंदा साल के गुनाहों का कफारा। इस्लाम का सबसे पहला मुआहिदा कौन सा था? मुआहिदा मदीना। कुरान पाक में किस दरख्त को मुबारक कहा गया है? जैतून का दरख्त। क़यामत के दिन सबसे भारी अमल कौन सा होगा? हुस्न इखलाक। कुरान पाक में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? 4। फिरौन के दरबार में ईमान लाने वाले कौन थे? जादूगर। कुरान पाक में किस दरिया को पार करने का जिक्र है? दरियाए नील। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा मोजज़े किस नबी को दिए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। क़यामत के दिन सबसे पहले कौन सी चीज उठाई जाएगी? कुरान का इल्म। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। क़यामत के दिन सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोला जाएगा? जन्नत का दरवाजा।
हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मशहूर लक़ब क्या था? असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। वो कौन सी कौम थी जिस पर सबसे ज्यादा सख्त अजाब आया? कौम आद। किस नबी को मछली के पेट में रखा गया था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। दुनिया में सबसे पहले तामीर होने वाली इबादत गाह कौन सी है? खाना काबा। वो कौन सा दरख्त है जिसका जिक्र कुरान मजीद में सबसे ज्यादा आया है? खजूर का दरख्त। किस नबी ने सबसे पहले लोहे को नरम किया? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। बिस्तर पर खाना खाने से घर में कौन सी मुसीबत आती है? बिस्तर पर खाने से घर में नहुसत आती है और शैतान का दाखिला आसान हो जाता है, जिससे घर में बेबरकती और बीमारियों का खदशा बढ़ जाता है। सबसे पहला कत्ल किसने किया था? काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था।